Okay, guys. So welcome all. Welcome. It's a organization, and our today topic is Proc SQL. It's very good topic, and it's a part of advance. So when we need to do some process, like in terms of like smart process, we can say. So we are using macro and SQL. Okay. So we learn data step, right? And as well as some proc step. But when we are doing proc SQL, okay, so it is very useful to cut down your programs. I can say like the person who are working 1 hour task by data step, we can do that task that same task by 45 minutes by proc SQL, okay. So that's why, like in terms of smartness or smart work, okay. So data set is a hard work, and proc SQL macro is a smart work because we can cut down the time, we can cut down the program length, okay. So that's why we are saying it is a SAS advance. So same procedure, whatever we are doing in data step, same procedure we can do in proc SQL. So SQL is nothing but it is a structure query language, okay? So structure query language is what? Okay. So this is the like history if you anybody know the structure query language. So in 1970, IBM developed this SQL. Okay. So in 1970, Dr. E.F. Code of IBM proposed SQL. Then gradually it's improved in 1980, and then 1981 first commercial SQL product is released. Then 1989 more than 75 SQL based system exist, okay. So SAS 6.06 version includes proc SQL. So it comes in the picture in 1989 in the SAS, okay. So if you heard like proc SQL, they lots of industry they are using. Normally, if you heard like IT guys, IT industry, they are using SQL, Java, .NET, kind of. So they are using extensive level of SQL. So in SAS, in 1989, they introduced SQL, okay, to use like to take the advantage of the SQL, and we can avoid some data step, okay. We can cut down the some lines, program lines, or we can say that smarter way we can write the programs, okay. But yes, the tremendous change we observed in 2000, like 1919, Proc SQL is enhanced for SAS 8 version. Then in 2004, Proc SQL is again enhanced for SAS 9 version. Okay, so this is the basic history behind that. Okay, so this is processing. Okay, so basic things is what SAS, okay, and SQL. So this is for data set. This is a terminology, and this is table. Okay. So in SQL, okay, we are using these. Here we are using data set. Here is a table. We are we are knowing as observation. Here row. Here variable. Here column. Okay. So processing file, we are using this terminology in SAS and this SQL. Okay, so this is the basic difference. So here we are saying that record, how record we can know like row as a row in SQL, field as a column. Okay, so what the advantage and what statement or options we are using, like functions. So suppose if we want to drop columns, so in data step, like we are using drop. Okay, we are using drop statement here, or options here we are using select. So everybody we need to understand this, okay.
सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, इसमें हर एक में डिफरेंस क्या है। हम यहाँ पे ऐसे ऐसा लिखा है SAS एंड SQL, सो डोंट कंफ्यूज। SQL इज द डिफरेंट बॉडी, बट SAS में वो इंट्रोड्यूस हुई 1999 में। ओके, सो ऐसा कंफ्यूजन मत होना कि यार सर ये SQL तो SAS में ही आ रहा है, तो सो इट्स अ, फिर SAS ने उसको मर्ज किया, जैसे कि अभी SAS पाइथन को भी मर्ज कर रहा है, उसके कुछ कुछ फंक्शन उसमें मर्ज कर रहा है वैसे। तो प्रॉक SQL एंड SAS, तो पहले जो SAS में ये हम डेटा स्टेप ये सब सारी चीज़ कर रहे थे, फिर यही सारी चीज़ SQL में भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ड्रॉप स्टेटमेंट ऑप्शन यूज़ हो रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये सबको याद रखना है, मैं बारी बारी हर एक को पूछूंगा। ठीक है, रीनेम कॉलम, तो यहाँ पे रीनेम ऑप्शन है, यहाँ पे क्या है, एज, ऐड रोज। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट है, यहाँ पे इंसर्ट इनटू है, डिलीट रोज, और वी कैन से फिल्टरिंग। ओके, और सब्सटीट्यूट करना है, कुछ फिल्टर लगाना है, तो यहाँ पे हम वैर यूज़ करते हैं या देन डिलीट लिखते हैं। यहाँ पे भी वैर स्टेटमेंट यूज़ होता है, एंड डिलीट फ्रॉम लिखते हैं, डिलीट फ्रॉम करके। ठीक है, ये तो ये सारे बेसिक ऑप्शंस है जो हमें याद रखने हैं, ये हमें सारा याद है। ठीक है, नो डुप्लीकेट, अगर प्रॉक शॉर्ट करना है तो उसमें नो डुप्लीकेट है, डिलीट डुप्लीकेट रोज, तो इसमें डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट बोले तो यूनिक, यूनिक बोले तो सिंगल, लाइक अगर आपके पास 3 ऑब्जर्वेशन है, उसमें लिखा है कि अ, मान लो कि सिंपल करण करण एंड मनोज, तो करण करण 2 बार आ रहा है, तो डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक तो एक ही बार चाहिए, करण और मनोज। तो उसमें क्या होगा, जो 2 बार करण आ रहा है तो एक ही बार चाहिए, डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो रहा है तो निकाल दो। तो यहाँ पे हम प्रॉक शॉर्ट में नो डुप्लीकेट यूज़ करते हैं, नो डुप्की लगाते हैं, यहाँ पे डिस्टिंक्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम डेटा स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, राइट, यहाँ पे क्रिएट टेबल यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करेंगे वो हम, मैं आई विल शो यू, बट जस्ट दिस इज बेसिक ओवरव्यू, तो हर एक को पता होना चाहिए। ठीक है, शॉर्टिंग करने के लिए हम डेटा सेट में क्या करते हैं, प्रॉक शॉर्ट करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर बाय करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा प्रॉक शॉर्ट स्टेप आपको लिखना होता है, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट में खत्म हो जाता है, ऑर्डर बाय लिखा खत्म, ऑर्डर बाय जो भी वेरिएबल डालना है डाल दो। ठीक है, समराइज डेटा, प्रॉक समरी, फर्स्ट डॉट, लास्ट डॉट, यहाँ पे ये सब करना पड़ता है। लेकिन प्रॉक एसक्यूएल में आपने ग्रुप बाय लिख दिया, जो भी वेरिएबल का नाम है डायरेक्ट लिख दो, वो पूरा मतलब यहाँ पे एक एक पूरा स्टेप करना पड़ता है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट में हो जाता है। ओके, इसमें इफ देन है, तो यहाँ पे केस वैन है, यहाँ पे प्रॉक प्रिंट है, यहाँ पे सिलेक्ट है, और यहाँ पे कॉन्करेंट करना है, सेट है, तो यहाँ पे आउटर यूनियन एंड CORR कोरिलेशन का है। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉक एसक्यूएल। ओके, सो फंक्शंस कौन से यूज़ करने हैं, तो ये सारे यहाँ पे एक ही सिंटेक्स में हो जाएंगे, एक ही स्टेटमेंट में हो जाएंगे। जैसे कि हमको पता है, जब भी हम बाय स्टेटमेंट डालते हैं, कोई भी दो डेटा सेट को मर्ज करते हैं, तो बाय स्टेटमेंट डालते हैं, तो उसके पहले वो डेटा सेट शॉर्टेड होना चाहिए वही वेरिएबल से, जो वेरिएबल से हम मर्ज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको एडिशनल उसके पहले स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट लिख दो ऑर्डर बाय, जो भी लिखना है, मतलब जो भी वेरिएबल हो। ठीक है, तो दिस इज द एडवान दिस इज द एडवांटेज ऑफ एसक्यूएल। ओके, हम उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। सो प्रॉक एसक्यूएल इज अ पावरफुल बेस एस प्रोसीजर। ओके, सो वो एड ऑन कब हुई, लेटर ऑन इन 1999। Okay, so that combines the functionality of data and proc steps into a single step. नॉर्मली हमें क्या, प्रॉक शॉर्ट करना रहता है, ये प्रॉक मर्ज करना रहता है ना, बाय स्टेटमेंट लिखना होता है, तो ये हमें इस उसके लिए हम अलग से प्रोग्राम लिखते हैं ना। पहले लिख दिया प्रॉक शॉर्ट डेटा, डेटा वन बाय नेम रन, फिर प्रॉक शॉर्ट डेटा, डेटा टू बाय नेम रन,
फिर ये दो डेटा को आप मर्ज कर सकते हो। एसक्यूएल में ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट डाल दो और ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, शॉर्ट के लिए ऑर्डर बाय डाल दो, क्लासिफिकेशन के लिए ग्रुप बाय डाल दो, तो सीधा काम हो जाएगा। ठीक है। proc एसक्यूएल कैन शॉर्ट, समराइज, सबसेट बोले तो फिल्टर लगा सकते हैं, वायर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। एंड कॉन्केटिनेट डेटा सेट्स, मतलब डेटा सेट को हम कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सेट कर सकते हैं, न्यू वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। proc एसक्यूएल में हमें अगर न्यू वेरिएबल डेटा सेट में क्रिएट करना है तो आपको लिखना पड़ता है कि भाई ये वेरिएबल। एसक्यूएल में पहले से ही मतलब एक ही फंक्शन, एक ही वर्ड में हो जाता है। एंड प्रिंट द रिजल्ट्स और क्रिएट अ न्यू टेबल और व्यू ऑल इन वन स्टेप। तो दिस इज द एडवांटेज। तो ये पूरा एडवांटेज है कि ये हम कर सकते हैं। तो कौन सी चीज़ कर सकते हैं हम? लाइक शॉर्ट, ठीक है, समराइज, सबसेट। सबसेट बोले तो कौन सा स्टेटमेंट? join, merge, concatenate data set, create new variables, and print the results or create a new table or view all in one step। इतनी सारी चीज हम कर सकते हैं। ओके। सो इतनी सारी जो हम डेटा स्टेप में करते हैं ना, यहाँ पे एक ही एक ही proc SQL स्टेप में हो जाएगा। कैसे? have a look। ओके। शॉर्ट, समराइज, सबसेट, मर्ज, सेट, न्यू, क्रिएट न्यू वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ें एक एक ही स्टेप में। ठीक है। सो द फास्ट नोट, द फॉलोइंग आर फीचर्स। कौन? हाँ, दिव्य पढ़ो तो कौन से हैं? Yes, sir. First is no proc short step is needed to order query results. Second is no by classification step is needed for query results. Third is proc SQL is terminated with a quick statement. Fourth, not required to create new variables like data steps. And, combining SQL and SAS data steps can provide more efficiency than SAS data steps alone. You do not have to pre-sort data to be able to merge. This specifies pertain to large datasets. Many-to-many merges can be done by SQL to avoid merge statement errors and determine if a dataset is empty or describe a dataset. And last is some SQL methods are shorter than SESTEP. Yes, so these are the features. Okay, sometimes when we are merging two data sets like many to many, so we are getting this error. Okay, merge statement errors. So when you are working in the industry, okay, so you found that this error is not acceptable. Okay, so if you do that merging by SQL, we will not get this error. Okay, when we have a duplicate records, then we are getting this type of errors. Okay, so lots of advantages are there. So have a look basic syntax of proc SQL, how we can create data sets from like from the input data sets, how we can select the variable. Okay, so normally in data step like versus SAS SQL. Okay, so here output data set, here create table, जैसे कि यहाँ पे लिखा है proc SQL सेमीकोलन। ठीक है, हमें लिखना कैसे है? proc SQL सेमीकोलन। अभी
इनपुट डेटा सेट्स, जैसे कि यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं आउटपुट डेटा सेट्स, डेटा सेट लिखते हैं, डेटा स्टेटमेंट, वैसे यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल एज अ न्यू डेटा, मतलब जो भी हमें नया डेटा सेट बनाना है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, क्रिएट टेबल, जैसे मैंने पहले बताया ना कि यहाँ पे डेटा सेट को क्या नाम बोलते हैं, टेबल। तो जो नया डेटा सेट बनाना है उसको बोल रहे हैं क्रिएट टेबल, और जो भी नाम है उसका देना है वो हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, क्रिएट टेबल एज, सो दिस इज अ सिंटैक्स। इसके बीच में आपको जो भी डेटा सेट नया बनाना है वो लिखना है। देन फ्रॉम, फ्रॉम जो भी डेटा आपको यूज करना है, इनपुट डेटा सेट्स हमारा, जो हम यहाँ पे सेट स्टेटमेंट में लिखते हैं ना नॉर्मली डेटा स्टेप में, तो यहाँ पे लिखता है फ्रॉम, मतलब कहाँ से लेना है, कौन सा लेना है, तो ओल्ड डेटा, मतलब जो जो भी डेटा हमें यूज़ करना है उसका नाम। ठीक है, और जो भी वेरिएबल आपको सिलेक्ट करना है, चाहिए जो भी वेरिएबल, तो आपको लिखना है सिलेक्ट, इसके ये दोनों के बीच में कौन से वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल वन, कॉमा वेरिएबल टू, कॉमा वेरिएबल थ्री। और एक चीज़ की ध्यान रखनी है कि प्रॉक एसक्यूएल फिर सेमीकोलन, फिर लास्ट में ही सेमीकोलन आएगा, क्विट सेमीकोलन, रन की जगह पे यहाँ पे क्विट होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रॉक एसक्यूएल का सिंटैक्स है। ठीक है, सो ये हर एक को आना चाहिए। कैसे करना है फिर से देख लो, प्रॉक एसक्यूएल सेमीकोलन, अच्छे से देखना, मैं पूछूंगा हर एक को, प्रॉक एसक्यूएल सेमीकोलन, क्रिएट टेबल एज, उसके बीच में आप डाल दो जो भी डेटा सेट का नाम डालना है। देन सिलेक्ट, सिलेक्ट किसके लिए, जो भी वेरिएबल आपको रखने हैं, जो जितने भी रखने हैं, मान लो 8 वेरिएबल्स है तो उसमें से 3 ही रखना है, तो उतना ही लिखना है, वेरिएबल वन, कॉमा वेरिएबल टू, कॉमा वेरिएबल थ्री, फ्रॉम ओल्ड डेटा क्विट, सेमीकोलन दो जगह ही आएगा, एक यहाँ पे और क्विट में, फर्स्ट एंड लास्ट, बीच में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो अभी चैट में एवरीवन, एवरीवन मस्ट राइट द बेसिक सिंटैक्स ऑफ प्रॉक एसक्यूएल। मेरा डेटा सेट यूज़ करना है सेस हेल्प डॉट क्लास, और उसमें से नया बनाना है क्लास वन, तो उसका सिंटैक्स लिख के मुझे भेजो। चलो पूरा एक लाइन में लिखना तो ही आएगा। ठीक है, अदरवाइज एक एक चैट में क्या होता है, एक 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 लिख के एंटर दे दोगे तो पूरा हो जाएगा, तो एक एक पूरा लिख के फिर एंटर दबाना। दिस इज कंपल्सरी फॉर ऑल। पूरा सिंटेक्स, हाँ, प्रॉक एसक्यूएल से लेके ट्वीट तक, ट्वीट सेमीकोलन तक। ठीक है, तब तक मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछता हूँ हर एक को। निशा, कितने सेमीकोलन होते हैं प्रॉक एसक्यूएल सिंटेक्स में? प्रिया? मैं ओके, ओके गुड। ठीक है, सिलेक्ट स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं? तेजस भाई? હેલો. यस, सिलेक्ट स्टेटमेंट। સિલેક્ટ સ્ટેટમેન્ટમાં આપણે જે પણ ઓલ્ડ ડેટામાંથી જે પણ વેરિયેબલ લેવાના હોય ન્યૂ ડેટામાં તો हम्म, સિલેક્ટ સ્પેસ છોડીને જેટલા પણ વેરિયેબલ લેવા છે દરેક વેરિયેબલના નામ લખવાના ત્યાં बाय અને कॉमा, ત્યાં या, બાય કોમા, યસ બાય કોમા. ओके ग्रेट। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। proc sql create table class 1 as select variable 1 2 from says help dot class create, perfect। okay, great।
proc SQL create table class 1 as select variable this show this great perfect. Okay, so this is the basic syntax. Okay, जो हर एक को आना चाहिए. कैसे लिखना है? तो ऐसे लिखना है. जो डेटा सेट में हम नॉर्मली यही करते हैं, तो यहाँ पे ये है. ठीक है. ओके, और एक सिंटैक्स है. How does SQL syntax look and work? So this is the whole syntax of SQL. Okay, so proc SQL semicolon. ठीक है. Then create table new data as select variable 1 variable 2. on variable 2 में मैक्सिमम कौन सा है वो चाहिए. as variable 3. so ये क्या करेगा? वेरिएबल 1 देगा, वेरिएबल 2 की वैल्यू देगा, फिर वेरिएबल 2 में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको वेरिएबल 3 में डालेगा एज वेरिएबल 3. सो काइंड ऑफ एडवांस टेक्निक हो गई. ओके, इसका मैक्सिमम दे देगा. नॉर्मली हम डेटा सेट में क्या करते हैं? डेटा सेट में हम क्या करते हैं? सिंपल हम सम स्टेटमेंट या ऐसा यूज करते हैं ना. यहाँ पे वी कैन यूज इट मैक्स. वेरिएबल 2 जो भी वैल्यू आती है उसको डालो वेरिएबल 3 में. फ्रॉम ओल्ड डेटा, ये हमें पता है. फिर वैर स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट इज इक्वल टू यस ग्रुप बाय ऑर्डर बाय. ठीक है. when we are using the like syntax like select from where group by order by, अगर एक बार ये खत्म हो गया ना तो यहाँ पे आप एक सेमीकोलन डाल दो इसके लिए क्रिएट टेबल से लेके ऑर्डर बाय तक. अदरवाइज proc SQL और क्विट ओनली 2 सेमीकोलन और अंदर की जो प्रोसेस है हमारी तो एक सेमीकोलन लास्ट में यहाँ पे. ठीक है. सो टोटल वैसे हम देखने जाए ना तो टोटल 3 सेमीकोलन हम हमारे पास रहेंगे पूरे proc SQL के सिंटेक्स के लिए. ठीक है. देखो, क्रिएट proc SQL क्रिएट टेबल न्यू डेटा कहाँ से कर रहे हैं हम? फ्रॉम ओल्ड डेटा. ओके, तो फ्रॉम ओल्ड डेटा में से हमें ये करना है, क्रिएट करना है. फिर कौन से वेरिएबल को रखना है? वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 फिर ये. ठीक है. ये कैसे करेंगे हम देखते हैं. फिर वैर ट्रीटमेंट इज इक्वल टू यस फिल्टर भी मार दिया. याद रखना है इसके पीछे सेमीकोलन नहीं डालना है, लास्ट में ही डालना है. फिर ग्रुप बाय कर सकते हैं. क्लासिफिकेशन, ग्रुप बाय बोले तो क्लासिफिकेशन. जैसे कि मान लो जेंडर है तो मैं यहाँ पे जेंडर लिखता हूँ तो वो पहले मेल और फीमेल देगा. ठीक है, फीमेल और मेल देगा. ऑर्डर बाय है तो वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 शॉर्ट कर देगा. और क्विट में सेमीकोलन, एसक्यूएल proc SQL में सेमीकोलन. तो दिस इज द बेसिक सिंटैक्स. ओके, हर एक को आएगा ना. ग्रुप बाय क्या करेगा? क्लासिफिकेशन करेगा, ग्रुपिंग करेगा. ऑर्डर बाय क्या करेगा? proc शॉर्ट करेगा. ठीक है. यहाँ पे देखो मैंने एक नया वेरिएबल बना भी दिया, वेरिएबल 3. कैसे बना? वो क्या करेगा? वेरिएबल 2 में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको लेके मैंने बना दिया वेरिएबल 3. तो अंदर ही अंदर मैंने एक नया वेरिएबल भी क्रिएट कर दिया. तो जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि वी कैन क्रिएट न्यू वेरिएबल्स. क्रिएट न्यू वेरिएबल्स है ना. बहुत सारी चीज़ हम proc SQL में इजीली कर सकते हैं. डोंट हैव टू प्री शॉर्ट. ठीक है. मर्ज के लिए सीधा हम हमारे पास ऑप्शन है इनर जॉइन लेफ्ट जॉइन, तो हम वो बाद में देखेंगे कैसे करते हैं. अभी हम एक बेसिक सिंटैक्स देखते हैं कि कैसे करना है जो हर एक को आना चाहिए. ठीक है. proc SQL एकदम इजी है लेकिन उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए. अभी आपको डेटा स्टेप आता है तो proc SQL भी आना चाहिए. बस हर एक के फंडा अलग है. ठीक है. ठीक है.
अभी ये क्या करेगा, डिफाइन अ एसक्यूएल प्रोसीजर विद इन योर सैस कोड। ठीक है, इससे अच्छा ये स्लाइड है। सो प्रॉक एसक्यूएल क्रिएट टेबल न्यू डेटा, जो हमने देखा ना वही है, सेम स्लाइड है। सो ये क्या करेगा, डिफाइन एसक्यूएल प्रोसीजर विद इन योर सैस कोड। ओके, तो इसमें न्यू डेटा क्या है, क्रिएट एन न्यू डेटा सेट्स कॉल न्यू डेटा एज फॉलोज, लाइक दिस, ऐसे लिखना है आपको। सिलेक्ट द फॉलोइंग वेरिएबल्स एंड स्पेसिफाई एनी कैलकुलेशंस इफ रिक्वायर्ड। इसमें कैलकुलेशन भी यहाँ यहीं पे हो जाएगी। ठीक है, डेटा सेट में तो हमें करनी पड़ती है कि भाई कोई नया वेरिएबल बनाओ, वेरिएबल 3 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ वेरिएबल 2, सम ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं ना, यहाँ पे सीधा हो गया। वेर फिल्टर हम कैसे लगाते हैं, तो बस जैसे डेटा सेट में लगाते हैं वैसे ही यहाँ पे लगाना है। उसमें सेट स्टेटमेंट लगते हैं, यहाँ पे फ्रॉम लिखा है, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय। ठीक है, these options will create groups in datasets new data, मतलब ग्रुप्स बाय लिखा है तो राइट, एंड द न्यू datasets will be sorted by the following order। so order by में proc sort भी हो गया। ओके, फ्रॉम द datasets call old data, ये अच्छा एक एरो निकल गया यहाँ से, ये है यहाँ का राइट। ओके, ठीक है, तो दिस इज द बेसिक्स। ओके, अब एक प्रैक्टिकल करके देते हैं, है ना। तो हमें डेटा लाइंस पता है राइट, एवरीबॉडी नो डेटा लाइंस। अगर हमें हमारा खुद का, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अवर ओन डेटा सेट्स देन वी आर यूजिंग डेटा लाइंस, राइट। कैसे बनाते हैं, ऐसे। तो ये हमारा हो गया डेटा लाइंस वाला कोड। ठीक है, सो दिस इज द मेथड 1 व्हेन वी वांट टू क्रिएट न्यू डेटा सेट विद इन अ सैस। सेकेंड मेथड क्या है, प्रॉक एसक्यूएल से भी आप कर सकते हो अगर आपको इजी लगता है तो। प्रॉक एसक्यूएल क्रिएट टेबल सैस्टेट 2। ठीक है, जैसे यहाँ पे बनाया है सैस्टेट 1 बनाया है, वैसे सेम चीज़ जो यहाँ पे है वही मुझे क्रिएट करनी है, लेकिन सैस्टेट 2 ऐसे। और यहाँ पे जो भी वेरिएबल का नाम है, ठीक है, उसका टाइप, जैसे यहाँ पे हम क्या देते हैं, लेंथ स्टेटमेंट में और इनपुट स्टेटमेंट में डालते हैं ना, तो वो लेंथ और इनपुट स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा लिख दो यहाँ पे जो आईडी है। आई वांट टू क्रिएट 3 वेरिएबल्स, आईडी, नेम एंड सेक्स। तो यहाँ पे हम डॉलर साइन ये सब करते हैं, ठीक है, लेंथ भी डालते हैं यहाँ पे पूरा, आईडी, न्यूमेरिक। सो एन, तो आपको याद क्या रखना है, एन, जैसे वहाँ पे, यहाँ पे हमने क्या किया था, मैक्सिमम किया था राइट। तो याद हमें बस ये थोड़े थोड़े ऑप्शन रखने चाहिए, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम किया है तो एम एक्स याद रखना है ना। यहाँ पे सीधा आप ब्रैकेट्स में लिख दो कि आईडी, न्यूमेरिक, कॉमा, नेम, कैरेक्टर, CHAR, लेंथ कितनी देनी है वो भी ब्रैकेट में लिख दो ऐसे, कॉमा, सेक्स, कैरेक्टर, ब्रैकेट में लेंथ लिख दो। नम में लिखा नहीं है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट 8 ले लेगा, तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आप सीधा इसमें डाल सकते हो, मतलब ऐसा ही लिख सकते हो सीधा। ओके, अभी इसको इंसर्ट इनटू सैस्टेट 2। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार ये सब याद कौन रखेगा तो छोड़ दो, तो प्रॉक एसक्यूएल से आपको ये करना नहीं है। लेकिन आपको एक बार अगर आ गया ना तो आप सीधा फटाफट कर सकते हो। अगर लगता है कि आपको ये मेथड इजी लग रही है तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉक एसक्यूएल से ही करना है, आप इससे करो। ठीक है, ये इजी रहेगा ना, सीधा हमें पता है। अगर ये एक्सप्लोर करने के लिए है,
अगर आपको लगता है तो ये कर सकते हो। इंसर्ट इनटू मतलब ये डालेगा किस में, सेट 2 में, मतलब जो डेटा सेट है उसका नाम लिखना है यहाँ पे। और उसकी जैसे यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डेटा लाइंस, तो यहाँ पे लिखते हैं वैल्यूज, ब्रैकेट में जो भी वैल्यूज डालनी है डाल दो। 1001 आईडी, नेम तो कैरेक्टर में कोटेशन में डालो, सेक्स ऐसे कोटेशन में। तो हर एक वैल्यूज को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। और ट्वीट, मेरे ख्याल से अगर डेटा सेट क्रिएट करना है तो डेटा सेट ईजी है ना, डेटा लाइन से क्रिएट करना है और ऑन डेटा सेट क्रिएट करना है, तो आई थिंक दिस इज द इजी कोड। लेकिन इससे क्या होगा कि अगर कुछ कोई कॉम्प्लेक्स डेटा सेट बनाना है तो फटाफट आप यहीं पे बना सकते हो ऐसे, अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है। एक एक तीसरी मेथड है, उसमें कोई और कुछ नहीं है, लेकिन ये जो वैल्यूज यहाँ तक का सेम है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ये वैल्यूज की जगह पे आप सीधा सिंपल लिख सकते हो कि सेट करके आईडी इज इक्वल टू दिस, नेम इज इक्वल टू दिस, मतलब हर एक वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है, हर एक वेरिएबल का नाम लिखना है। सो आई डोंट प्रीफर दिस मेथड, उससे अच्छा है तो ये आप ये इजी है उसके लिए, और इससे भी इजी ये है। लेकिन मैंने देखा है इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग अगर डेटा सेट क्रिएट करना है तो ये मेथड यूज करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। ओके, पर्सनली आई लाइक दिस, सिंपल एंड सोबर, बट हमें पता होना चाहिए। इन इंटरव्यू में भी someone will ask, you know that if we want to create our own data set in SAS, so we can create by proc SQL, then answer is yes. Okay, so ये हम कर सकते हैं। चलो अभी हम एक डेटा सेट बनाते हैं ओल्ड डेटा करके, उसमें है आईडी, नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, देख लो एक बार डेटा सेट देख लो। आईडी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नेम है रीक बैन, मिशेल, रेयान। सैलरी, डिपार्टमेंट, ठीक है, सैलरी ये है और डिपार्टमेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये डाला। सो we create old data. ओके, तो डिपार्टमेंट बन गया यहाँ पे आईटी, ऑपरेशंस, एचआर, फाइनेंस, आईडी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे मैंने आईडी लिखा है, फिर नेम लिखा है, सैलरी लिखा है, फिर डिपार्टमेंट लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये पहले क्यों आ रहा है भाई? इसका आंसर कौन देगा? निशा, निशा आप दो। हेलो निशा, ये प्रोग्राम में हमने यहाँ पे आईडी पहले लिखा है, फिर नेम लिखा है, सैलरी लिखा है, फिर डिपार्टमेंट लिखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले डिपार्टमेंट आ रहा है, क्यों? चलो पायल आप बताओ। Alphabetically, sir. It comes first. लेंथ में डिपार्टमेंट लिखा है, यस, बिकॉज ऑफ लेंथ, Yes, yes. राइट, बिकॉज ऑफ लेंथ। क्या होगा लेंथ से? वो Length तो and input statement come, मतलब हाँ, पहले तो सबसे पहले वो लेंथ लेंथ देगा ना, इनपुट से पहले उसके भी पहले, इसीलिए लेंथ स्टेटमेंट से स्टार्ट होगा ना ये। तो सबसे पहले बोल दिया डिपार्टमेंट, तो सबसे पहले वेरिएबल में डालेगा डिपार्टमेंट, फिर डालेगा आईडी,
क्योंकि उसके बाद ही ये स्टेटमेंट यूज होगा ना। SIPD सबको पता है, राइट? कंपाइलेशन पहले ये ऐसे होगा, राइट? फिर जाके इम्प्लिसिट आउटपुट करके ये डेटा तो लास्ट में होगा ये स्टेटमेंट। इसीलिए ठीक है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखना। चलो ठीक है, तो अभी एक बन तो गया, चलो हमारा ये बन तो गया। डिपार्टमेंट ID नेम। मैंने देखे बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में होते हैं, उनको ये भी पता होता है कि ये साला ये वेरिएबल आगे क्यों है। ठीक है, चलो है तो है क्या, अभी अपने को क्या करना है। लेकिन उनको पता नहीं होता है। होता है, 1-2 साल तक तो मुझे भी नहीं पता था। So now we can use, like I want to use proc SQL, ठीक है। तो एक नया डेटा, यही यही स्टेप हम SQL में करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि लिखना है proc SQL सेमीकोलन, ठीक है, क्रिएट टेबल, जो भी डेटा सेट का नाम देना है, क्या देना है यहाँ पे, न्यू डेटा। कौन सा डेटा सेट यूज़ करना है? ओल्ड डेटा, ये यूज़ करना है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट ये हो गया, क्रिएट टेबल एज न्यू डेटा, बीच में लिखना है सिलेक्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक बोले तो सारे अगर आपको वेरिएबल्स रखने हैं तो आपको एस्ट्रिक लिखना है, लिख दो। इफ वी वांट टू कीप ऑल वेरिएबल्स, AES streak will must be used when we want to keep all variables in select statement, ओके। सारे वेरिएबल्स रखना है तो एस्ट्रिक यूज करो, अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए तो वेरिएबल का नाम कॉमा से सेपरेट करके लिख दो, ठीक है। ओके, अगर आपको स्पेसिफिक वेरिएबल चाहिए, when we want to keep specific variables, तो ऐसे लिखना है, ठीक है। सो दिस इज अ डिफरेंस। एस्ट्रिक में क्या होगा, सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे, ओके। सो 3 चीज नहीं सीखी, ठीक है। एक तो हमने हमारा खुद का डेटा सेट्स अगर क्रिएट करना है तो वी कैन क्रिएट, ओके। मैं आपको ये भेज दूंगा, ठीक है, ये मेथड भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। सो हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये सीखे हमने कि एस्ट्रिक किसके लिए यूज़ हो रहा है, अगर इफ़ यू वांट टू कीप ऑल वेरिएबल्स, if you want to keep all variables then we should use asterisk, ठीक है। इसको asterisk बोलते हैं, कुछ लोग उसको स्टार बोलते हैं, लेकिन इट्स नॉट स्टार, इट्स अ asterisk, ओके। चलो ठीक है, एंड ये तो हमें पता है। सो एक सेमीकोलन यहाँ पे, एक पूरा ये प्रोसेस, मतलब जो भी स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं उसके लिए लास्ट में, और एक यहाँ पे। सो टोटल 3 सेमीकोलन आएंगे, ओके। So when we want to keep specific variables, तो सिंपल ऐसे, ओके। तो चलो उसको भी देख लेते हैं पहले। ये हम रन करके देखते हैं। हमने ये रन किया, देखो इसका लॉग भी कैसा अलग आ रहा है, डेटा स्टेप का और इसका। टेबल वर्क डॉट न्यू डेटा क्रिएटेड विद 8 rows एंड 4 columns, ओके। हमारी मीटिंग एंड हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ओल्ड डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी कुछ डिटेल्स नहीं आ रही है, जैसे डेटा सेट में आती है, राइट। अगर डेटा सेट हम करते हैं तो उसमें आती है ना पूरा डेटा, एम सेट सेस हेल्प डॉट क्लास,
अगर ऐसा कुछ करते हैं तो वो हमें पूरी डिटेल्स देता है सेट स्टेटमेंट की, मतलब इनपुट डेटा सेट और आउटपुट डेटा सेट, ठीक है, दोनों की डिटेल्स देता है। यहाँ पे खाली न्यू डेटा बोले तो नया डेटा सेट है उसकी ही डिटेल्स देगा, ठीक है। ठीक है, मीटिंग एंड करते हैं और 10-15 मिनट में फिर से ज्वाइन करते हैं, है ना। 10-15 बोले तो अभी 4:22 हुआ है ना, तो 4:40 है ना, 4:40